हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस या नेशनल यूथ डे के रूप में। प्रतिवर्ष ये 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स एंड यूथ आइकन। This day was officially declared as National Youth Day in 1984 by the Government of India. इसके साथ ही इस वर्ष की थीम की बात करें तो 2026 का जो नेशनल यूथ डे है उसका थीम है इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड, highlighting the importance of awakening inner potential, character, and confidence among young people so they can become responsible citizens and positive agents of change. इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का सेशन। आज आज के इस करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। देन हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा ईस्टर्न आइस सेल्फ के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी के बारे में। देन अन्वेष सैटेलाइट के बारे में देखेंगे। थंथाई पीरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में रही, इसके बारे में देखेंगे। नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे वाइमर ट्रायंगल के बारे में। शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements regarding open network for digital commerce. यहाँ पर ONDC से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ONDC इज अ सेंट्रलाइज्ड digital marketplace that owns and manages product listings to prevent platform monopolies. And second, it operates under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade within the Ministry of Commerce and Industry. And third statement is the network utilizes open protocols and standardized APIs to ensure interoperability between different buyer and seller applications. और यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और वो है फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये कोई सेंट्रल मार्केट प्लेस नहीं है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल नेटवर्क है। आप देख सकते हैं। The Open Network for Digital Commerce is a landmark initiative aimed at democratizing digital commerce in India. It is not a central marketplace or a platform like Amazon or Flipkart. Instead, it is a decentralized digital network that does not own listings, control sellers, or process orders directly. It functions as a set of open protocols that allow different platforms, whether for food, mobility, or grocery, to talk to each other. For example, a buyer on one app can purchase from a seller on a completely different app. This interoperability is achieved through standardized APIs, breaking the silos created by the platform-centric models. और इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2022 में, and it is mentored by the DPIIT under the Ministry of Commerce and Industry. By providing a level playing field, ONDC empowers small merchants and MSMEs who might otherwise be overshadowed by the large e-commerce giants like Amazon and Flipkart, thereby fostering a more inclusive and competitive digital ecosystem. आपने देखा कि जो ONDC है
इस इनिशिएटिव का एम है प्रमोट करना ओपन नेटवर्क्स फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो इसको डेवलप किया गया है एज अ काउंटर टू द करंट duopoly in the Indian e-commerce market, which is largely dictated by the Amazon and Walmart owned Flipkart. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Eastern Ice Shelf recently in the news for rapid fracturing and deterioration, so it is associated with which of the following? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में तेजी से टूटने और खराब होने के कारण खबरों में रही जो पूर्वी बर्फ की शेल्फ है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ग्रीनलैंड आइस शीट, लैम्बर्ट ग्लेशियर, थ्वाइट्स ग्लेशियर या फिर पाइन आइलैंड ग्लेशियर। आपको बताना है हाल ही में जो रैपिड फ्रैक्चरिंग के कारण ईस्टर्न आइस शेल्फ चर्चा में रहा वो इनमें से किससे संबंधित है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये संबंधित है थ्वाइट्स ग्लेशियर से। आप देख सकते हैं द ईस्टर्न आइस शेल्फ is the floating extension of the Thwaites Glacier in the West Antarctica. So it plays a crucial role as a braking system because it is anchored by an undersea ridge known as Pining Point. So this contact with the seabed slows the flow of ice from the glacier into the Amundsen Sea. So scientists are concerned because the TEIS is developing massive fractures which could lead to its disintegration. If the shelf collapses, the pining effect is lost, allowing the glacier to flow much faster into the ocean, accelerating sea level rise. ये जो पूर्वी हिमखंड शब्द है इसका प्रयोग अक्सर जो पश्चिमी अंटार्कटिका में स्थित थ्वाइट्स पूर्वी हिमखंड है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Directorate General of Mines Safety, consider the following statements. जो खान सुरक्षा महानिदेशालय है उससे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी फंक्शनिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। एंड सेकंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द माइंस एक्ट 1952। And third, its headquarters is located in the coal capital of India, Dhanbad. और यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पर केवल एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और वो है फर्स्ट स्टेटमेंट, जबकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी है ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। आप देख सकते हैं while the DGMS deals with the mining, it is statutory regulatory authority under the Ministry of Labor and Employment, not the Ministry of Mines. Its primary focus is the safety, health, and welfare of workers.
So, DGMS is the primary agency responsible for the administration and the enforcement of the Mines Act 1952 and the various rules and regulations framed under it regarding coal, metalliferous and oil mines. So, इसका हेडक्वार्टर स्थित है धनबाद झारखंड में, which is often referred to as the coal capital of India due to its extensive coal mining reserves. सो ये जो डीजीएमएस है ये हाल ही में चर्चा में रहा बिकॉज रिसेंटली इसने सेलिब्रेट किया है अपना 125th फाउंडेशन डे एट इट्स हेडक्वार्टर इन धनबाद। तो आपने देखा कि ये एक रेगुलेटरी एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सो जो डीजीएमएस है इसके मिशन की बात करें तो इट्स मिशन इज टू कंटिन्यूली improve safety and health standards, practices and performance in the mining industry and upstream petroleum industry by implementing proactive safety and health strategies, continuous improvement of processes and effective use of resources। आप ध्यान रखेंगे इसका हेडक्वार्टर है धनबाद झारखंड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अन्वेष, जिसको EOS-N1 के नाम से भी जाना जाता है, टू बी लॉन्च्ड बाय द इसरो इन 2026 इज प्राइमरली विच ऑफ दीज। सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसरो द्वारा 2026 में लॉन्च की जाने वाली जो अन्वेष सैटेलाइट है जिसको EOS-N1 के नाम से भी जाना जाता है वो इनमें से मुख्य रूप से क्या है। आपके ऑप्शंस हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट फॉर 6G टेक्नोलॉजी, सेकंड नेविगेशन सैटेलाइट फॉर द नाविक कॉन्स्टिलेशन, थर्ड हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट या फिर स्पेस टेलीस्कोप टू स्टडी एक्सोप्लैनेट्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये जो अन्वेष सैटेलाइट है ये एक हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। आप देख सकते हैं IOS-N1 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 codenamed Anves is an advanced hyperspectral earth observation satellite unlike multispectral sensors that capture data in few broadbands. Hyperspectral sensors capture data across hundreds of the narrow spectral bands. So this allows for the fingerprinting of materials on the Earth's surface, making it highly effective for identifying specific mineral types, crop diseases, and camouflaged military assets. So it is a dual-use asset serving both strategic and civilian needs. So ये अभी चर्चा में रहा because ISRO will begin 2026 with a PSLV C62 mission launching the Advanced Surveillance Satellite जिसका नाम है EOS-N1 along with 18 co-passenger payloads. So इसका उद्देश्य है to enhance space-based surveillance and reconnaissance capabilities while supporting civil applications such as agriculture, urban planning and environmental monitoring. आप ध्यान रखेंगे इसको लॉन्च किया जाएगा श्रीहरि कोटा से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में चर्चा में रहा जो थंथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं केरला, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये स्थित है तमिलनाडु में। आप देख सकते हैं। सो ये न्यूज में रहा बिकॉज द फर्स्ट फेज ऑफ द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 हैज स्टार्टेड इन द थंथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इट इज लोकेटेड इन द बर्गर हिल हिल्स ऑफ Erode district in Tamil Nadu. So this sanctuary lies between Satyamangalam Tiger Reserve of Tamil Nadu and Male Mahadeshwar and Kaveri Wildlife Sanctuary of Karnataka. So this area is the part of the Nilgiris Elephant Reserve. So ये जो थंथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, it is one of the tiger corridors identified by the National Tiger Conservation Authority. तो यहाँ से जो रिवर होकर के गुजरती है वो है पलार रिवर। आप ध्यान रखेंगे, थंथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो कि हाल ही में चर्चा में रही है, ये तमिलनाडु में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स इज अ नेशनल क्वालिटी फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड बाय विच मिनिस्ट्री। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा जो राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक है वो किस मंत्रालय के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय गुणवत्ता ढांचा है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आपको बताना है जो नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है ये किस मंत्रालय ने स्थापित किया है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। आप देख सकते हैं। सो रिसेंटली 50,373 public health facilities across all states and union territories were certified under National Quality Assurance Standards. सो ये एक नेशनल क्वालिटी फ्रेमवर्क है क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका उद्देश्य है इम्प्रूव करना सेफ्टी, क्वालिटी एंड पेशेंट फोकस्ड नेचर ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। So it first focused on district hospitals to ensure reliable and quality care. Now it covers district hospitals, sub-district hospitals, community health centers and Ayushman Arogya Mandir, primary health centers, urban primary health centers and sub-health centers. So ये जो फ्रेमवर्क है जो कि वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आपने देखा कि ये इम्प्रूव करता है पब्लिक हेल्थ केयर को कवरिंग 8 एरियाज, और ये 8 एरियाज हैं सर्विस प्रोविजन, पेशेंट राइट्स, क्लिनिकल केयर एंड इन्फेक्शन कंट्रोल असिस्ट बाय चेकलिस्ट फॉर वेरियस फैसिलिटीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वाइमर ट्रायंगल इज अ पॉलिटिकल ग्रुपिंग ऑफ विच 3 कंट्रीज। सो हाल ही में ये काफी चर्चा में रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि जो वाइमर त्रिकोण है वो किन 3 देशों का राजनीतिक समूह है। आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड या फिर इटली, स्पेन, फ्रांस। थर्ड, रशिया, इंडिया, चाइना या फिर इंडिया, नेपाल एंड भूटान। आपको बताना है वाइमर ट्रायंगल जो ग्रुप है उनमें से कौन से 3 देश शामिल हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये कंट्रीज हैं फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। आप देख सकते हैं। सो इंडिया एक्सटर्नल मिनिस्टर
joined India's first engagement with the Weimar Triangle alongside France, Poland, and Germany. So this triangle is the regional political grouping of France, Germany and Poland जिसको फॉर्म किया गया था 29th of August 1991 को through a joint declaration at Weimar in Germany. So its aim was to involve France in German-Polish reconciliation using Franco-German experience. So it seeks to strengthen political dialogue and cooperation among the three countries. सो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा जो वाइमर ट्रायंगल है उसमें फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड देश शामिल हैं। सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।